I want to share a message entitled Praying for One Another. आज मैं जो संदेश बांटने वाला हूँ उसका शीर्षक है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना. Now many places, not here, when you hear about prayer, people tune off. कई जगहों पे, यहाँ पे नहीं, लोग जब प्रार्थना की बात सुनते हैं तो वो उब जाते हैं. Prayer becomes so fresh because Bible is full of prayers. बाइबल प्रार्थनाओं से भरा हुआ है और वो हमें ताज़ा करता है. So don't tune me off right now. तो इस वक्त आप मेरी बातों को सुनना बंद ना करें. I want you to listen to this message ध्यान से इस संदेश को सुनिए. because it's going to transform your prayer life. क्योंकि इससे आपका प्रार्थना जीवन बदल जाएगा. We're going to go and look at a very specific aspect this morning. आज सुबह हम प्रार्थना के एक बहुत ही खास पहलू देखने वाले हैं. Now, giving gift is a part of a culture over the years. सदियों से हमारी संस्कृति रही है कि हम एक दूसरे को तोहफा देते हैं. Now, how many of us like to receive gifts? कितने लोगों को उपहार पाना अच्छा लगता है? Yes, be honest. आप सच कहें? Okay, yeah. Okay, put your hands down. How many of you like to give gifts? कितने लोगों को उपहार देना अच्छा लगता है? Okay, great. बहुत अच्छा. Equally important, yeah. वो भी बहुत जरूरी है. You see, giving gift is a part of our culture over the years. सदियों से हमारी संस्कृति रही है कि हम उपहार देते हैं. Some overdo it and others are moderate. कुछ बहुत ज्यादा ही देते हैं और कुछ सीमित. But either way, you should give gifts. लेकिन दोनों तरफ से देखें तो हमें उपहार देने चाहिए. And either way, you should be willing to receive gifts. और लेने भी चाहिए. Look at some of the gifts people gave to others. कुछ उपहार हम देखेंगे जो लोगों ने दूसरों को दिया है. The hanging gardens of Babylon. बेबीलोन के झूलने वाले बगीचे. According to the legend, the ancient hanging gardens of Babylon was a gift from King Nebuchadnezzar II to his wife, Queen Amytis. राजा नेबुकदनेस्सर ने अपनी रानी एमिटिस को झूलने वाली जो बगीचे है बेबीलोन में ऐतिहासिक वो दिया था उपहार के रूप में. As a surprise gift, Lady Gaga's pals at the Interscope Records decided to give her this gift, a horse, in 2015. 2015 में इंटरस्कोप रिकॉर्ड स्टूडियो के लेडी गागा जो मित्र थे उसे अचानक एक घोड़ा उपहार दिया. Mukesh Ambani, how many of us know Mukesh Ambani? कितने लोग मुकेश अंबानी को जानते हैं? Okay, the business tycoon. जो व्यापारी है. He gave an Airbus A319 costing $60 million to his wife Neeta Ambani on her 44th birthday. अपने 44वें जन्मदिन पे नीता अंबानी को मुकेश अंबानी जी ने एक हवाई जहाज तोहफे में दिया था जिसकी कीमत थी 6 करोड़. The point I am making, friends, is the greatest gift we can give each other in relationships or in the family of God is the gift of prayer. मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के परिवार में या फिर रिश्तों में जो सबसे बड़ा उपहार हम एक दूसरे को दे सकते हैं वो है प्रार्थना. How do we normally pray? हम अक्सर कैसे प्रार्थना करते हैं? For each other? एक दूसरे के लिए. First of all, when someone asks us to pray. पहला, जब कोई हमसे कहता है कि हमारे लिए प्रार्थना करें. Secondly, when we hear of someone's needs. दूसरी, जब हम सुनते हैं किसी की जरूरत है. And thirdly, और तीसरा, which I recommend in this service, what we're going to look at. जो मैं इस सभा में सबको चाहता हूँ कि ये सिफारिश दूं. When we make it a habit to pray for each other without being asked. जब हम आदती रूप पे एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं बिना पूछे. And so today's message is going to emphasize that. तो आज के संदेश में हम इस बात पे जोर डालेंगे. We are going to pray for each other regularly. हम नियमित रूप से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे. And as we do that, और जैसे हम ये करते हैं, our relationships will be shaped by prayer. हमारी प्रार्थना हमारे रिश्तों को आकार देगा. Let us never forget, friends. हम इस बात को कभी ना भूलें दोस्तों. The way we pray shapes the way we live. हमारी प्रार्थना हमारे जीवन को आकार देता है. As believers, we need to know विश्वासी होने के नाते हमें इस बात को जाननी चाहिए that prayer shapes who we are and everything we do. कि हम जो भी है और जो कुछ भी करते हैं सब कुछ प्रार्थना द्वारा आकार पाता है. Now, Martin Luther, a great servant of God, परमेश्वर का महान दास मार्टिन लूथर, he said it so eloquently. कितनी स्पष्टता से उन्होंने कहा. He said to be a Christian or a follower of Christ, एक मसीही होना, without prayer is no more possible than to be alive without breathing.
बिना प्रार्थना का मसीही होना यानी कि बिना सांसें लेना जीवित रहने के बराबर है। How many of us are breathing this morning? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? Huh? Otherwise, you're not alive, right? नहीं तो हम जीवित ही नहीं। So prayer is as important as breathing. प्रार्थना उतना ही जरूरी है जितने की सांसें लेना। If you want to live spiritually, यदि आप आत्मिक रूप से जीना चाहते हैं, if you want to be very fresh spiritually, आप आत्मिक रूप से ताजा रहना चाहते हैं, you ought to pray. आपको प्रार्थना करने की जरूरत You है। need to pray. आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। When we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, God works. परमेश्वर काम करते हैं। Amen. आमीन। When we pray, God जब हम works. प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कार्य करते हैं। There is power in prayer, friends. प्रार्थना में सामर्थ होती है दोस्तों। Matthew chapter 7 verse 7 tells us, and we miss out this truth, that there is power in prayer. मत्ती 7 के 7 पद में ये सच्चाई लिखी है जिससे हम चूक जाते हैं कि प्रार्थना में सामर्थ है। It simply says, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be open to you. मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोला There जाएगा। is power in prayer. प्रार्थना में सामर्थ है And when we pray, God और जब हम works. प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर काम करते हैं। We have seen that in our life. हमने अपने जीवन में देखा है, We have seen that in our church family. अपने कलीसिया के परिवार में देखा है, Because God responds and answers to the prayers of His people. क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना का उत्तर देते हैं। It is so wonderful to really have this conviction when we pray, God works. ये आश्वासन कितना खूबसूरत है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर काम But करते the हैं। question that I ask myself and the question that we need to ask ourselves, लेकिन जो सवाल मैं खुद से पूछता हूँ और हम सबको पूछना चाहिए, does that make you want to pray? ये जानने पे क्या आप प्रार्थना करना चाहते हैं? Do I want to pray? क्या मैं और प्रार्थना करना चाहता हूँ? You see, friends, देखिए दोस्तों, as a child of God, परमेश्वर की संतान होने we के learn नाते that God is never busy to listen to our needs, our wants, and even our questions. परमेश्वर कभी इतने व्यस्त नहीं होते कि हमारी जरूरतें हमारे सवालों से व्यस्त हो जाए। In fact, James tells us in James chapter 4 verse 2, you have not because you ask not. याकूब 4 के 2 में लिखा है, तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। And so the apostle Paul in Philippians chapter 1 verses 1 to 11, he exhorts us about the importance of prayer for the family of God and highlights some of the things, how it gets better as we pray for one another. इसलिए फिलिप्पी के पुस्तक 1 से 11 पद में पौलुस हमें बताता है कि परमेश्वर के परिवार में प्रार्थना क्यों करनी चाहिए और चीजें कैसे बेहतर हो जाती है जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। I'm going to request Natasha to read that in Hindi. Listen to the word of God. आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे फिलिप्पी के पुस्तक 1 अध्याय 1 से 11 पद। मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्ष और सेवाओं समेत, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलने में मेरी सहभागी रहे हो, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसे ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में बसे हो और मेरे कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की से प्रीति करके तुम्हें सब के लिए लालसा करता हूँ, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता रहे, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। You know, Paul penned down this encouraging exhortation not from a palace but from a prison. पौलुस ने ये उपदेश किसी महल से नहीं, जेल के कैदखाने में लिखा था। In the dark prison cell, Paul is joyful. उस अंधेरे भरे कैदखाने में पौलुस आनंदित है। If you and I were in a prison,
यदि आप और मैं कैद खाने में होते, we would be grumbling, हम निंदा करते, we would be complaining, बड़बड़ाते, शिकायत we करते, would be disturbed. हम परेशान होते। Not so with Paul. लेकिन पौलुस नहीं था। Paul is joyful. पौलुस आनंदित था। Yes, Paul's body was in chains, but his spirit was unchained. हाँ, ये सच है कि उसका शरीर जंजीरों से बंधा था, लेकिन उसकी आत्मा मुक्त थी। And as we read this, Paul commends the Philippi church for their partnership in the gospel. और हम पढ़ते हैं कि पौलुस फिलिप्पी की चर्च को, कलीसिया को सराहता है कि सुसमाचार फैलाने में उसके साथ खड़ा था। Further, he commends the believers in the Philippi church for their love towards one another. और ये इसलिए भी सराहता है कि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं कलीसिया में। And finally, Paul reminds them what they mean to him and that he is committed to pray for them. और आखिर में पौलुस उन्हें याद दिलाता है कि वो उनके जीवन में क्या मायने रखता है और वो उनके लिए प्रार्थना भी करेगा। This morning, I'm going to answer 3 questions about praying for one another. आज सुबह मैं 3 सवालों का जवाब देने वाला हूँ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के विषय पे। I'm going to raise the question सवाल मैं ही पूछूंगा so that we can all think together. कि हम सब एक साथ सोचें। And then I'm going to give you the answer और फिर मैं उत्तर भी दूंगा based on Philippians chapter 1 verses 1 to 11. फिलिप्पी की पुस्तक 1 अध्याय 1 से 11 पद पे आधारित। So get ready. तो आप तैयार हो जाइए। Here is the first question. पहला सवाल, Why pray? हम प्रार्थना क्यों करें? The answer is because we are a family. जवाब ये है क्योंकि हम एक परिवार है। The New Testament is packed with references that the church is a family. नए नियम में कई सारे वचन है जो हमसे कहता है कि कलीसिया एक परिवार And है। families always ought to do with relationships. और परिवार रिश्तों से बंधा हुआ होता है। The New Testament uses a Greek word called koinonia, नए नियम में यूनानी भाषा में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, कोइनोनिया, which simply means fellowship. यानी कि सहभागिता। But koinonia is more than having tea and fellowship, friends. लेकिन कोइनोनिया यानी कि केवल चाय पे दावत और बातचीत करने से बढ़कर होता It है। has an idea to that. और उसके पीछे एक विचार है। And it's good that if you have tea and fellowship with one another, तो ये अच्छा है कि आप चाय और राय बांटे, invite each other. एक दूसरे को दावत दे। If you're following the COVID protocol and it's not a good time, it's okay. Some other time you invite. क्योंकि ये कोविड का माहौल है, इसलिए इस वक्त आप आमंत्रण ना भी दे तो भी But ठीक it's है। good to have tea and fellowship with each other. लेकिन ये अच्छा है कि आप एक साथ चाय पीते हैं और बात करते But हैं। koinonia involves being involved in life with one another. लेकिन कोइनोनिया का अर्थ होता है एक दूसरे के जीवन में शामिल होना। Now you understand why praying for one another is critical. अब आप जानते हैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना इतना जरूरी क्यों है। Now I remember singing a song when I was a teenager. जब मैं युवा था मैं एक गीत गाता था, मुझे It याद है। might be new to most of you here, ज्यादातर लोगों के लिए ये गीत नया हो सकता है, but some of you may remember this song. कुछ लोगों को याद होगा शायद। It simply said, I'm so glad I'm a part of the family of God. उसके बोल कुछ ऐसे हैं, मैं खुश हूँ कि मैं परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हूँ। How many of you are glad this afternoon that you're a part of the family of आप God? में से कितने लोग खुश हैं कि आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हैं? Amen. आमीन। And it says, I've been washed in the fountain, मैं झरने से धुला हुआ हूँ, cleansed by his blood, उसके लहू से धुला हुआ, joint heirs with Jesus और यीशु के साथ सहवारिस, as we travel this earth, जैसे हम इस धरती पे यात्रा करते हैं। for I am a part of the family, क्योंकि मैं उस परिवार का हिस्सा the हूँ, family of God. परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हूँ। Paul in verse 1, पहले पद में पौलुस he establishes our identity. हमारा पहचान स्थापित करता है। He says we are in Christ and we belong to each other. वो कहता है हम मसीह में हैं और एक दूसरे के हैं। So listen to the way that he said it. सुनिए कितनी खूबसूरती से वो उसने कहा। He's saying to God's holy people in Christ Jesus at Philippi. वो कहता है जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं परमेश्वर के लोग। If you bring that truth today to us at this time, आज के दौर में, आज के समय में हमारे पास ये we सच्चाई, are all in हम Christ सब मसीह में हैं and we belong to each other. और एक दूसरे के भी है। People who have been touched by God's love and have surrendered their lives to Him become children of God. जिन लोगों के जीवन को परमेश्वर ने स्पर्श किया है और अपने जीवन को परमेश्वर के आगे सौंपते हैं, वो परमेश्वर के संतान हो The जाते हैं। Apostle John reminds us of this truth in John chapter 1 verse 12. He says, yet to all who did receive Him, that is Jesus, to those who believed in His name, He gave the right
to become children of God. यूहन्ना के सुसमाचार 1:12 में यूहन्ना कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया यानी कि यीशु को, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। In Galatians chapter 6 verse 10, Paul uses another word to describe the family of God. गलातियों की पुस्तक 6:10 पद में पौलुस एक और शब्द का इस्तेमाल करता है परमेश्वर के परिवार को He uses the समझाने। word household of faith. वो कहता है विश्वास का घराना यानी कि विश्वासी भाई बहन। Listen to Paul as he writes that, friends, in Galatians 6 verse 10. गलातियों 6:10 को हम सुनते हैं। He says, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें और विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। Paul here reminds us that we may not be biologically related, but through Christ we are related because of our shared faith. पौलुस हमें याद दिलाता है कि हो सकता है हम शारीरिक रूप से एक नहीं है, लेकिन क्योंकि हम मसीह में हैं इसलिए हमारा विश्वास एक है और हम एक परिवार के हैं। Again in Ephesians chapter 2 verse 19, Paul emphasizes the same thought. इफिसियों की पुस्तक 2:19 पद में पौलुस इसी बात को दोहराता है। He says, consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of his household. इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संग स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। Friends, one of the ways the family of God or the household of faith is encouraged and strengthened is when we regularly pray for each other. जब हम नियमित रूप से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर के घराने के लोग और विश्वास के भाई बहन प्रोत्साहन पाते हैं। Praying for each other is both a privilege and a responsibility. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना हमारे लिए सौभाग्य भी है और जिम्मेदारी भी। How often have we told our friends we'll be praying for you and the next day we forget to pray about that? कितने अक्सर हमने अपने दोस्तों से कहा मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और दूसरे दिन ही हम भूल जाते हैं। It happens with you. आपके साथ कभी हुआ है? It happens with me. मेरे साथ भी हुआ है। We mean well. हमारे इरादे तो नेक है। You get busy doing other things and you get distracted even by some personal matter. लेकिन हमारा ध्यान भटक जाता है किसी निजी बात को लेके और हम व्यस्त हो जाते हैं। This morning I am not saying this to make us feel guilty, friends. मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप दोषी महसूस करें दोस्तों। I am stressing the importance of praying for each other even though it may be a struggle for us. हालांकि ये संघर्ष है लेकिन हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। मैं इस बात पे महत्व डाल रहा हूँ। Even though if you have missed praying for someone, हालांकि आप किसी के लिए प्रार्थना करने से चूक भी गए हो, you told them you'll pray for them, आपने कहा कि मैं करूंगा, but don't quit praying. लेकिन प्रार्थना करना ना छोड़ें। Get back to praying. दोबारा प्रार्थना करें। Make it a habit. इसे अपनी आदत बना लीजिए। Practice every day. रोजाना अभ्यास करें। Ask the Lord to help you. प्रभु से कहिए मेरी सहायता कीजिए। Lord, remind me, Lord, प्रभु मुझे स्मरण दिलाइए that I will pray for the needs that are there. कि जो जरूरतें हैं मैं उसके लिए प्रार्थना करूं। You see, for Paul, others did not take a back seat, friends. पौलुस के लिए वो पीछे नहीं हट गया था लोगों के लिए प्रार्थना करने से। He did not take his brothers and sisters in faith for granted. विश्वास के घराने के भाई बहनों को उसने हल्के तौर पे नहीं लिया। We find two indicators that others were always on Paul's mind. दो बातें इस ओर इशारा करते हैं कि दूसरे लोग पौलुस के मन पे हमेशा थे। The passage that we read, जो वचन हमने पढ़ा, Paul talks about this. पौलुस इस विषय पे बात करता The है। first indicator, और पहला इशारा, Paul remembered the Philippians. पौलुस फिलिपियों के लोगों को याद करता था। Verse 3 tells us, I thank my God upon every remembrance of you, Philippians. मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। My brothers and sisters in the Philippian church. फिलिपियो कलीसिया में मेरे भाई बहन, Friends, as a family of God, दोस्तों परमेश्वर के परिवार होने के we नाते must be committed to remember one another. ये जरूरी है कि हम वायदा करें हम एक दूसरे को याद करेंगे। It should not be, as the saying goes, out of sight, out of mind. इस कहावत की तरह हम ना बन जाए कि आंखों से ओझल तो मन से भी ओझल। Yes, it is possible when we come to church on Sunday, we see each other and we remember each other. हाँ, ऐसा हो सकता है हम रविवार को कलीसिया आते एक दूसरे को देखते हैं तो याद करते हैं, But somehow during the week, they are not on our mind. लेकिन पूरे हफ्ते वो हमारे मन में नहीं रहते हैं, They are out of our mind. वो हमारे मन से ओझल हो But जाते हैं। Paul is inviting us to be intentional.
लेकिन पौलुस कहता है कि हम जानबूझकर सोच समझकर उन्हें याद करें. Think or remember our brothers and sisters when we are not together. जब हम एक साथ नहीं भी हो तो भी अपने मसीही भाई बहनों को याद करें. Secondly, Paul prayed for the Philippians regularly. और दूसरी बात, पौलुस ने नियमित रूप से फिलिपियो कलीसिया के लिए प्रार्थना की. Look at verse 4. चौथे पद को देखिए. Always in every prayer of mine for you, always making request with joy. और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ. Friends, Paul found it a great joy to pray for the family of God. परमेश्वर के परिवार के लिए प्रार्थना करना पौलुस के लिए आनंद की बात थी. You see, friends, our prayers for others will never be a waste. दूसरों के लिए प्रार्थना करने से वो प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा. You may not know the results, शायद आपको परिणाम ना पता but you हो, need to know this: when we pray for others, we join God in His work in their lives. लेकिन ये जानना जरूरी है, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में जो करना चाहते हैं, हम उस बात में परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं. When you pray for your brothers and sisters in the family of God in your home, जब आप अपने घर पे परमेश्वर के परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, even from your workplace, या शायद अपने दफ्तर पे भी, what you're doing is asking God to do His work in the lives of my brothers and sisters. आप परमेश्वर से कह रहे हैं कि परमेश्वर अपना कार्य आप कीजिए मेरे भाई बहनों के जीवन में. Now, God does amazing things, परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हैं, but He does amazing things in response to prayer. लेकिन प्रार्थना के उत्तर देते हुए अद्भुत कार्य And करते हैं. you and I play a critical role और इसमें हमारी भूमिका बहुत ही as जरूरी we है. pray for each other. जैसे हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं. How many of us want to see God do some amazing things in the lives of our brothers and sisters? हम में से कितने लोग चाहते हैं हमारे भाई बहन के जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करे? Apostle Paul is saying, then pray. पौलुस कह रहा है फिर प्रार्थना कीजिए, Pray for them. उनके लिए प्रार्थना कीजिए. As a family of God, परमेश्वर के परिवार होने के नाते we don't walk alone, friends, हम अकेले नहीं चलते हैं, but our brothers and sisters walk beside us. लेकिन हमारे भाई बहन हमारे साथ चलते हैं. We share our biggest joys and our deepest griefs. हमारे सबसे बड़े आनंद और सबसे बड़े दुख जो होते हैं एक साथ बांटते हैं. We make time to help each other. समय निकाल के एक दूसरे की सहायता करते हैं. I think the area that God is calling us today, जिस क्षेत्र में परमेश्वर हमें बुला रहे हैं आज, God wants us to improve in our prayer for others. परमेश्वर चाहते हैं दूसरे के लिए जब हम प्रार्थना करें वो और बेहतर हो जाए. He wants us to improve by making time for each other regularly in prayer. कैसे बेहतर होगा कि हम दूसरे के लिए प्रार्थना के लिए और समय निकालें नियमित रूप से. So first question, why pray? तो पहला सवाल, हम प्रार्थना क्यों करें? Because we are the family of क्योंकि God. हम परमेश्वर के परिवार हैं. The second question is how to pray. दूसरा सवाल, हम कैसे प्रार्थना करें? We must pray fervently. हमें जोश के साथ प्रार्थना करना Friends, चाहिए. one of the things we are guilty of as people belonging to the family of God is that we don't pray enough for each other. एक दोष है हमारा जो हम परमेश्वर के परिवार होने के नाते भी कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन काफी नहीं करते. I don't want to ask for a show of hands. मैं नहीं चाहता कि आप हाथ उठाएं, But as I speak to you, लेकिन जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, God by His Holy Spirit is speaking to us. परमेश्वर अपनी आत्मा द्वारा हमसे बात कर रहे हैं. The truth is we don't pray enough for each other. सच तो ये है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना जो करते हैं वो काफी नहीं है. When we pray for each other, we should not take a shortcut or pray without passion. जब हम प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए तो हम कोई आसान रास्ता या फिर जोश बिना प्रार्थना ना करें. It is not for the sake of praying. केवल प्रार्थना करने के लिए ना कीजिए. We are called to pray with fervency. हमें जोश के साथ उत्सुक होकर प्रार्थना करना We चाहिए. must pray with steadfastness. दृढ़ता के साथ प्रार्थना करना चाहिए And we must pray from our heart. और दिल से प्रार्थना करना चाहिए. What is fervent prayer? और उत्सुक प्रार्थना क्या होता है? Fervent prayer is putting your whole self, all your attention, your mind, your will, your emotions on the things you are praying about. जिन चीजों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप परिपूर्ण रूप से पूरे मन से, पूरी भावना से, पूरी इच्छा से प्रार्थना कीजिए. So when we talk about praying for each other, तो जब हम बात करते हैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के विषय पे, fervently, उत्कट प्रार्थना, it is taking everything, your will, your emotion, your attention and your mind, and concentrate, focus on the person that you're praying. तो आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं पूरी इच्छा, पूरे मन, पूरी भावना के साथ प्रार्थना कीजिए.
Now, Paul was fervently in praying for the churches that he established. जिन कलीसियों का स्थापना पौलुस ने किया था वो जोशीले रूप से उनके लिए In प्रार्थना fact, करता when you था। read all of his epistles, जब आप उसके सारे चिट्ठियां पढ़ेंगे we find out that he makes mention of it. वो बात करता है इस विषय पे। It was his regular practice to pray for the churches, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करना उसके लिए आदती बन गया था। the precious people that were a part of those churches. उस कलीसिया के जो खास लोग थे उनके लिए। In 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, Paul invites us to pray without ceasing. पहला थेसलोनियों 5 के 17 में पौलुस कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो। And in Colossians chapter 1 verse 9, Paul tells the Colossian church like this, and so from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you will be filled with the knowledge of his will and all spiritual wisdom and understanding. कुलोसियों की पुस्तक 1 के 9 पद में पौलुस लिखता है, इसलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करते और विनती करने से नहीं चूकते हैं कि तुम सारी आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा को पहचान सको। I want us to understand what Paul is saying about praying without ceasing. निरंतर प्रार्थना करने के विषय पे पौलुस क्या कह रहे हैं हम समझे। Praying without ceasing does not mean non-stop praying. निरंतर प्रार्थना करने का ये अर्थ नहीं कि हम बिना रुके प्रार्थना करते जाए, But it does mean constantly or recurring prayer. लेकिन इसका ये अर्थ है कि हम बारंबार नियमित रूप से प्रार्थना करें। How often do we take time to pray for each other? दूसरों के लिए हम प्रार्थना कितने अक्सर करते हैं? Can we be steadfast in our prayer for each other? एक दूसरे के लिए प्रार्थना में क्या हम दृढ़ बन सकते हैं? You see, friends, fervent prayer does make a difference in the lives of people, but it will cost you something. उत्सुक प्रार्थना से दूसरों के जीवन में प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसकी कुछ कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। It will cost you your effort and your time. उसकी कीमत है आपका मेहनत और समय। It will cost you to reorganize and reorder your schedule. जरूरी पड़ेगा कि आप अपनी अनुसूची को दोबारा से सजाएं। But here is the beauty and value of fervent prayer. लेकिन उत्सुक प्रार्थना की खूबसूरती और मूल्य ये है, Fervent prayer entrusts others to the one who can do something. उत्सुक प्रार्थना में हम अपने लोगों को उनके हाथों सौंपते हैं जो कुछ कर सकते हैं उनके लिए। You see, friends, we may not be able to do anything for our loved ones. हो सकता है हम अपने प्रियजनों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, But when we pray for them, लेकिन जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं we join forces with the one who can. हम उनके साथ जुड़ते हैं जो उनके लिए कुछ कर सकता है। And God can do anything and everything. और परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, But that is in response to your prayer and my prayers. लेकिन आपके और मेरे उत्सुक प्रार्थना का उत्तर देते हुए As we pray for one another, जैसे हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, we are trusting, we are believing that God will do anything and everything for each other. हम मानते हैं, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। Therefore, friends, prayer matters to God. इसलिए प्रार्थना परमेश्वर के आगे मायने रखता है। Your prayer matters to God. परमेश्वर के आगे आपकी प्रार्थना My मायने prayer रखता है, matters to God. मेरी प्रार्थना भी, And it does make a और difference. इससे बदलाव भी आता है। It changes us. हम बदल जाते हैं, Not only it changes us, it changes others. ना केवल हम, दूसरे भी बदल जाते हैं। Now listen to this beautiful thought about how God changes us as we pray. जैसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें कैसे बदलते हैं, इस सोच के बारे में आप पढ़िए, सुनिए। Someone has said, किसी ने कहा, when I woke up this morning, जब इस सुबह मैं जागा, I asked myself, what is life all about? मैंने खुद से पूछा जीवन का अर्थ क्या है। Have you asked that question sometime in your life? क्या आपने कभी ना कभी खुद से पूछा है ये सवाल? You know, especially the days that you don't feel up to the mark. खास तौर पे उन दिनों पे जब आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हो, You're very low in your spirit. आत्मा बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है, You're very disturbed. आप परेशान हैं, Things did not go well. चीजें अच्छी नहीं जा रही है। You perhaps have asked this question, what is life all about? शायद आपने ये सवाल पूछा होगा, जीवन का क्या मायने हैं? It's a good question to ask God. ये परमेश्वर से पूछने वाली अच्छी सवाल है। Whoever this person is, ये व्यक्ति जो भी है, when they asked this question to जब God, उसने ये सवाल पूछा परमेश्वर से, God began to take ordinary things of life परमेश्वर जीवन के साधारण चीजों को लेके and began to teach this person. इस व्यक्ति को सिखाने लगा, And so they wrote down that for you and for me. और इस व्यक्ति ने लिखा है इन विषयों को आपके और मेरे लिए।
And so listen to this. सुनिए ध्यान से। When I woke up this morning, I asked myself, what is life all about? जब मैं सुबह को जागा मैंने पूछा जीवन का क्या मायने है। I found the answer when I looked in my room. और मुझे जवाब अपने कमरे में ही मिला। The fan told me to be cool. पंखा ने मुझसे कहा कि ठंड रखो। The ceiling told me to aim high. और छत ने मुझसे कहा कि ऊंची आकांक्षा रखो। The window asked me to see the world. खिड़की ने कहा बाहर दुनिया को देखो। The clock wanted me to think every moment is precious. और घड़ी ने कहा कि हर एक पल खास है। The mirror said, reflect before you act. दर्पण ने कहा कुछ करने से पहले देखो। The calendar wanted me to be up to date. और पंचांग ने कहा कि तुम समय के साथ साथ चलो। The door told me to push hard to walk through the opportunities. और द्वार ने मुझसे कहा कि तुम जोर से धक्का मारो तभी अवसर आएंगे। Most importantly, the floor reminded me to kneel and pray. सबसे जरूरी मुझे फर्श ने याद दिलाया कि तुम घुटने टेक के प्रार्थना करो। Isn't it wonderful how God uses ordinary things of life to remind us how important it is to pray. कितनी खूबसूरत बात है, परमेश्वर साधारण चीजों के द्वारा हमें याद दिलाते हैं प्रार्थना करना कितना You जरूरी may है। not be able to kneel down if you have some difficulty, शायद आप घुटने टेक के प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, but that does not stop you from praying. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप प्रार्थना करना छोड़ दें। Pray. प्रार्थना कीजिए, Pray for yourself. खुद के लिए प्रार्थना कीजिए, Pray for others. दूसरों के लिए भी प्रार्थना कीजिए। And there is a very, very interesting story that is said. एक दिलचस्प कहानी बताई जाती है, I don't know how it's going to come out, मुझे पता नहीं सुनने में कैसा लगेगा, but our interpreters are very, very good. मैं पूरी कोशिश करूंगी। They will try to communicate, in fact, better than what is said in the English. कहानी को और भी अंग्रेजी से ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करूंगी। Amen? आमीन। Amen. Do you believe that our interpreters? Yeah, okay. Now, there was a pastor who had a parrot. एक पासवान के पास एक तोता था। How many of you have parrot in your किसी के house? पास घर पे तोता है? Nobody has a parrot here. किसी के पास नहीं है? Okay. It's okay. If you कोई बात don't नहीं। have, you can have one. चाहे तो आप रख सकते हैं। Maybe after hearing this story, you may not decide to have one. हो सकता है ये कहानी सुनने के बाद आप ना रखना चाहे। This pastor had a parrot. इस पासवान के पास एक तोता था All the parrot would say was, let's pray, let's pray. और तोता केवल यही कहता था चलो प्रार्थना करते हैं, The प्रार्थना pastor करते हैं। tried to teach him to say other things, but he was not successful. पास्टर जी ने उसे दूसरे शब्द सिखाने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। He learned that one of his deacons had a parrot. और उन्होंने जाना कि उनके एक डीकन के पास भी एक तोता है। His parrot would say, let's kiss, let's kiss. उनका तोता कहता था चलो चूमते हैं चूमते हैं। So the pastor decided तो पासवान ने सोचा to invite the deacon डीकन साहब को and his parrot और उनके तोते को over to his house. अपने घर पे बुलाते हैं। When the deacon arrived, जब डीकन आए they put the parrots in the same cage दोनों तोते को एक ही पिंजरा में डाल दिया to see what would happen. ये देखने के लिए कि क्या होता है। The deacon's parrot said, डीकन के तोते ने कहा let's kiss, let's kiss. चलो चूमते हैं चूमते हैं। The pastor's parrot said, पासवान के तोते ने कहा thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, My prayers have been answered. मेरे प्रार्थना का उत्तर मिल गया। This is a humorous story. ये एक मजाकिया You चुटकुला था। decide whether you want to bring a parrot in your home or अब आप not. सोचिए आपको तोता रखना है या नहीं। But the truth is, लेकिन friends, सच बात ये है God does answer prayers. परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देते हैं When we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, when we pray for जब ourselves, हम खुद के लिए प्रार्थना करते when हैं we pray for others, और दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, God does answer prayers. परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देते हैं। So we've answered two questions. तो हमने दो सवालों को जवाब दिया। Why pray? प्रार्थना क्यों करें? Because we are a family. क्योंकि हम एक परिवार है। How to pray? कैसे प्रार्थना करें? We must pray fervently. उत्सुकता के साथ, जोश के साथ। Third question, तीसरा सवाल, what to pray? क्या प्रार्थना करें? We must pray for God's favor. परमेश्वर के एहसान और अनुग्रह के लिए प्रार्थना You कीजिए। see, friends, when we pray for each other, जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, you don't need to have a prayer list. आपके पास सूची बनाने की जरूरत It's नहीं okay है। if you have a prayer list, सूची है तो ठीक है, but don't give the excuse I don't have the prayer ये list. बहाना ना बनाए कि मेरे पास कोई सूची नहीं। Pray for the favor of God to rest upon the person you are praying for. जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उस पे परमेश्वर का अनुग्रह बने रहे, ये प्रार्थना कीजिए। There are two understanding of the word favor.
अनुग्रह यानी कि एहसान शब्द को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। The first way we understand is पहला है God stepping into one situation to make a worthwhile difference. परमेश्वर किसी भी अवस्था में प्रवेश करते हैं और बदलाव लाते हैं। That's the favor of God. वो है परमेश्वर का अनुग्रह, The unmerited favor of God. जिसके हम योग्य नहीं ऐसा All of अनुग्रह। us seated here have experienced the unmerited favor of God. हम में से जितने यहाँ बैठे हैं परमेश्वर के इस एहसान और अनुग्रह को प्राप्त किए हैं जिसके हम So अयोग्य when we हैं। pray for the favor of God for each other, जब हम एक दूसरे के लिए परमेश्वर के अनुग्रह के लिए God प्रार्थना करते begins हैं, to send us His grace. परमेश्वर हमें अपना अनुग्रह देते हैं And there is a worthwhile difference that happens in our lives. और एक बदलाव आता है हमारे जीवन में Because God steps in. क्योंकि परमेश्वर प्रवेश He करते takes हैं complete control. और पूरा नियंत्रण ले And लेते He हैं changes everything around. और सब कुछ बदल जाता है। The second understanding is और दूसरी समझ ये है God bestows His blessing upon His people. परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देते हैं। Now when we pray for each other, जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते let हैं, us pray for both of these aspects, इन friends. दोनों पहलू के लिए प्रार्थना Let कीजिए। us seek the Lord's face to make a worthwhile difference in our brothers and sisters' life. कि हमारे भाई या बहन के जीवन में एक योग्य बदलाव आए, But also let's pray for God to shower His blessing upon our brothers and sisters. और हमारे भाई बहन के जीवन में अपनी आशीष को भी प्रभु उठेले। In the passage we are considering this morning, जिस वचन को हमने आज सुबह पढ़ा, the Apostle Paul reminds the Philippian church पौलुस फिलिप्पी के कलीसिया को याद दिलाता है that his prayer for them focused on two कि areas. वो भी उनके लिए प्रार्थना करता था दो क्षेत्रों में। Number one, पहला, he talks about their personal growth. उनकी निजी विकास के लिए। You know, Paul commends them for their love for each other and exhorts them to continue to love each other because love will shape relationships. पौलुस उन्हें सराहता है कि वो एक दूसरे से प्रेम करता है और उन्हें उपदेश देता है कि एक दूसरे से प्रेम करते रहो क्योंकि इससे रिश्तों को आकार मिलता है। And so verse 9 he writes, and this is my prayer that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight. और 9 पद में वो लिखता है, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता रहे। The second area his prayer focused on is the kingdom growth. और दूसरा उसका जो प्रार्थना था वो है परमेश्वर के राज्य का विकास। Now Paul encourages them that their partnership with him has advanced the gospel. पौलुस उन्हें ये कहता है कि उसके साथ खड़े रहने के वजह से सुसमाचार और भी फैला है। So in verse 5 we read, because of your partnership in the gospel from the first day until now, and then verse 12 he says, now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me actually served to advance the gospel. इसलिए 5 और 12 पद में वो कहता है कि पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलने में मेरे सहभागी रहे हो और मेरे साथ जो भी हुआ है उसकी वजह से सुसमाचार और भी फैला है। So when we pray for others, तो जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते when you हैं, pray for brothers and sisters in the family of God, परमेश्वर के परिवार के भाई बहनों के लिए प्रार्थना pray करते for हैं, their personal growth. उनकी निजी विकास के लिए Pray प्रार्थना that the कीजिए Lord will help them to grow, कि प्रभु उनकी सहायता करे कि वो और भी that they बढ़े, spiritually will grow, आत्मिक रूप से बढ़े, and in every aspect God's blessing would be upon them. जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु का आशीष उन पे बना रहे। But also pray for the kingdom growth. लेकिन इसलिए भी प्रार्थना कीजिए कि राज्य बढ़े। Our God wants to use all of us in the family of God. परमेश्वर के परिवार में परमेश्वर हर एक का उपयोग करना चाहते So हैं, pray for one another. तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना In कीजिए। spite of all of the busy schedules that we will have, व्यस्त होने के बावजूद भी, many of us are very busy people, हम में से कुछ लोग बहुत ही व्यस्त हैं, but we will know that God wants to use us. लेकिन हम जाने कि प्रभु हमारा उपयोग करना And चाहते as we हैं pray for one another, और जैसे हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे God is going to use us. प्रभु हमारा इस्तेमाल करेंगे, The gospel is going to advance. सुसमाचार और भी The फैलेगा city is going to experience the power of the gospel. और हमारा शहर सुसमाचार के इस सामर्थ को अनुभव करेगा। Because not only we are praying, क्योंकि ना केवल हम प्रार्थना कर रहे हैं, but we are praying for hearts to respond to God's call. लेकिन ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि कई सारे हृदय परमेश्वर So के this इस is a बुलावे के पास wonderful आए। prayer to start with as we pray for each other. तो ये एक अच्छा प्रार्थना है शुरुआती तौर पे। The prayer is, let my brother or sister grow in you every day, Lord, मेरा भाई या बहन आप में रोजाना और भी बढ़े प्रभु, and use them to advance your purposes. और अपने उद्देश्य को बढ़ाने के लिए उनका उपयोग कीजिए। This morning I want to pronounce the blessing of God from a scripture for you. परमेश्वर के वचन से मैं एक आशीष है जो आपके आगे घोषणा करना The चाहता हूँ। blessing that comes to us from Psalms 84 verse 11. भजन 84 के 11 पद में लिखा है ये आशीष, God
really gives us this blessing. प्रभु ये आशीष हमें देते हैं. And it says, for the Lord God is a sun and a shield. The Lord bestows favor and honor. No good things does he withhold from those whose walk is blameless. क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है. यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनमें से कोई अच्छा पदार्थ ना रख छोड़ेगा. There are three beautiful promises we can proclaim as people belonging to the family of God from this verse. इस वचन से हमें 3 खूबसूरत वादे मिलते हैं परमेश्वर के परिवार होने के नाते. First of all, पहला, God's presence. प्रभु की उपस्थिति. You see, he reminds us, for the Lord. क्योंकि यहोवा परमेश्वर. The scriptures always brings this prefix शुरुआत में ही वचन में लिखा रहता है ये that बात. it is about the Lord. ये प्रभु के बारे में है. If the blessing comes, it's about the Lord. यदि आशीष आती है If the तो प्रभु Lord की वजह sends से. us somewhere, it's about the Lord. यदि प्रभु हमें कहीं भेजते हैं तो उनकी वजह If the से. Lord is doing a new work in our life, यदि प्रभु हमारे जीवन में कोई It's नया about काम the कर Lord. रहे हैं वो उनके विषय में है. and so the presence of God is with his people. परमेश्वर की उपस्थिति अपने लोगों के साथ है. Compared to all of God's blessing, his presence is the most precious blessing. उनके दूसरे आशीषों के तुलना में सबसे खास आशीष है उनकी उपस्थिति. The second thing that we can claim the blessing from this verse और इस वचन से जो दूसरा वादा हमें मिलता है is God's protection. परमेश्वर की सुरक्षा. He will be a sun and shield. वो हमारा सूर्य और ढाल बनेगा. Friends, you have experienced that. दोस्तों, आपने ये अनुभव किया है. God has been our protector. परमेश्वर हमारे रक्षक रहे हैं. You know, you have prayed. आपने प्रार्थना किया You है. have asked others to pray. दूसरों से भी कहा है प्रार्थना Or करने. even if you have not prayed because there was no prayer request और given to यदि you. आपको प्रार्थना निवेदन नहीं मिला और But आपने नहीं when भी you किया, have prayed for somebody, even them not knowing about it, बिना जाने भी आपने शायद किसी के लिए प्रार्थना किया हो. God has protected them. परमेश्वर ने उनकी सुरक्षा की Only है. eternity will reveal केवल जब हम उस तरफ जाएंगे तब पता चलेगा what your prayer did for them. कि आपकी प्रार्थना की वजह से उन्हें क्या Because मिला. they were in need. क्योंकि वो जरूरत में थे. They were going through a trial and a testing. कोई परीक्षा से गुजर रहे थे But somebody prayed for them. और किसी ने उनके लिए प्रार्थना किया And God took care of that. और परमेश्वर ने उनका ख्याल रखा. Thirdly, God's provision. और तीसरी बात, परमेश्वर का प्रबंधन. No good thing will God withhold from you and me. आपसे और मुझसे जो खरी चाल चलते हैं वो कोई अच्छा पदार्थ रख ना छोड़ेगा. That's because we belong to him. क्योंकि हम उनके हैं. Those who walk blamelessly before him. जो खरी चाल चलते हैं. God's provision comes to us. परमेश्वर का प्रबंधन मिलता है. So here is my invitation, friends. मेरा आमंत्रण ये है आपके लिए Look दोस्तों. to the Lord as the source of every blessing. प्रभु की ओर देखिए जो हर एक आशीष का स्रोत है. We may be limited in meeting the need of people. दूसरों की जरूरतों को पूरा करने में हम सीमित रह जाते हैं. Not God. लेकिन प्रभु नहीं. He's the source of all वो blessings. हर एक आशीष के स्रोत है. The blessing of God will come upon them and it will come upon you. प्रभु की आशीष न केवल उन पर आएगी, आप पे भी उड़ेली Now, जाएगी. when you and I pray for each other, जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, you can see the blessing of God आप प्रभु के आशीष को देख पाएंगे. not only upon your brother and sister's न life, केवल आपके भाई बहन के जीवन but it में, will come upon you. लेकिन आप पर भी. Let me ask you a rather strange question, एक अजीब सवाल मैं पूछना चाहूंगा but it's a आपसे. very vital question that you and I need to answer. लेकिन एक बहुत ही जरूरी सवाल जिसका जवाब हमें देना चाहिए. And that question is, how many of us want to hear testimony in time to come? Somebody prayed for me. हम में से कितने लोग ये गवाही सुनना चाहते हैं कि किसी ने मेरे लिए प्रार्थना किया था. Perhaps they will come and tell you, शायद वो आपको आके बताएंगे, you prayed for me आपने मेरे लिए प्रार्थना and किया this था is my testimony. और ये मेरी गवाही है. Others you have prayed for, they don't even know that you prayed for. कुछ लोग होंगे जिनके लिए आपने किया हो प्रार्थना लेकिन वो जानते But भी when नहीं you हो. meet Jesus, when we go to heaven, जब हम स्वर्ग जाएंगे और यीशु से मिलेंगे, they will be there वो वहीं रहेंगे and Jesus will reveal it. और यीशु प्रकाश करेंगे इस You बात को. prayed. आपने प्रार्थना किया This is a child और ये संतान है मेरा and this child's life was changed. और इसके जीवन में प्रभाव पड़ा, And बदलाव they आया. faced a difficulty, वो कठिनाई से गुजर रहा था but they were strengthened because of your prayer. लेकिन वो सामर्थ पाया आपके There प्रार्थना की is वजह से. power in prayer. प्रार्थना में सामर्थ होती है. And when we pray for each other, और जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते and we हैं, are looking at, even if there is no prayer request given to us, हालांकि कोई प्रार्थना निवेदन भी ना आए हमारे we are पास, called to pray for one another, हमसे कहा जाता है हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना to be करें. steadfast and fervent in prayer. दृढ़ता के साथ, उत्सुकता के साथ. Somebody prayed for me. किसी ने मेरे लिए भी प्रार्थना That किया. would be a testimony. क्या गवाही होगी ये. Listen to this story सुनिए इस कहानी को about somebody who prayed for somebody. कि किसी ने किसी और के लिए प्रार्थना कैसे किया.
It's a very true story. सच्ची कहानी है So much of encouragement. और हमें कितनी प्रोत्साहन मिलती है. Talks about Dr. Wilbur Chapman, and he told his experience when he was a young man. He went to become pastor of a church in Philadelphia. डॉक्टर विल्बर चैपमैन जब वो नौजवान थे और फिलाडेल्फिया के एक कलीसिया में गए थे युवा पासवान के रूप में, After his first sermon, अपने पहले सभा के बाद an old gentleman said to him, एक बुजुर्ग उसके पास "You आया. are pretty young to be pastor of this church, उसने कहा कि तुम तो बहुत ज्यादा जवान हो इस कलीसिया के पासवान बनने के but लिए, you preach the gospel, लेकिन तुमने सुसमाचार बांटा and I'm going to help you all I can." और मैं जो भी सहायता कर सकता हूँ मैं करूंगा तुम्हारा. Dr. Chapman thought he must be crazy, डॉक्टर चैपमैन को लगा ये व्यक्ति पागल है, but the man continued, लेकिन वो व्यक्ति बोलता गया, "I'm going to pray for you that you may have the Holy Spirit's power upon you मैं प्रार्थना करूंगा कि पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम पर आए. 2 others have promised to join me in praying for you." 2 और लोग हैं जिन्होंने कहा तुम्हारे लिए हम तीनों मिलकर प्रार्थना करेंगे. Dr. Chapman said, डॉक्टर चैपमैन ने कहा, "I didn't feel so bad when I learned that he was going to pray for me." मुझे इतना बुरा नहीं लगा जब मुझे पता चला कि वो मेरे लिए प्रार्थना करने वाला है. The 3 became 10. बहुत ही जल्द वो 3 लोग 10 लोग हो गए, The 10 became 20. 10 से 20 हो गए And the 20 became 50. और 20 से 50, The 50 became 200, 50 से 200 लोग जुड़ who गए met before every service to pray that the Holy Spirit might come upon me. 200 लोग हर सभा से पहले प्रार्थना करते थे कि पवित्र आत्मा पासवान पे उठेली जाए. I always went to the pulpit feeling that I would have the anointing in answer to the prayers of those who had faithfully prayed for me. और मैं जब भी मंच पे जाता था मुझे लगता था कि प्रभु का अभिषेक मुझ पे रहेगा क्योंकि इन लोगों ने विश्वास योग्य रूप से मेरे लिए प्रार्थना किया It है. was a joy to preach. ये एक आनंद था कि मैं प्रचार करता था. The result was that we received 1,100 into our church by conversion in 3 years. और उसका अंजाम ये था कि 1100 लोग 3 साल में कलीसिया में जुड़ गए. 600 of them whom were men. 600 पुरुष. It was the fruit of the Holy Spirit in answer to prayer. उस प्रार्थना का जवाब देते हुए ये पवित्र आत्मा का फल था. Somebody prayed for me. किसी ने मेरे लिए प्रार्थना किया. Somebody prayed for me. किसी ने मेरे लिए प्रार्थना किया. Friends, there are people who are praying for you. दोस्तों कोई है जो आपके लिए भी प्रार्थना कर रहा And I है want you to pray for others. और मैं चाहता हूँ कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें. That is the message today. ये आज का संदेश है. We are praying for one another. हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना We are a करें family of God. परमेश्वर के परिवार में, And we are going to pray fervently. और हम उत्सुकता के साथ प्रार्थना करेंगे And we are going to pray for the blessing of God. और प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना And करेंगे. when we pray, something happens. जब हम प्रार्थना करते हैं तो कुछ होता है. God responds. प्रभु उत्तर देते हैं. God answers the प्रभु prayer. जवाब देते हैं प्रार्थनाओं का. People's lives are changed. जीवन परिवर्तित हो जाते हैं. The people who could have been at the verge of giving up, ऐसे लोग जो हार मानने के कागार पे होते हैं, at the verge of taking their life, अपने जीवन पे खुदकुशी करने के कागार somebody पे, had prayed किसी ने प्रार्थना किया and God moved. और प्रभु ने कार्य किया. God changed. प्रभु ने परिवर्तित कर There दिया. is power in prayer. प्रार्थना में सामर्थ्य I होती am है. praying that all of us will explore and commit ourselves to pray for each other. मेरी ये प्रार्थना है कि हम सब ये वायदा करेंगे कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना But even करेंगे. if it is small, छोटा भी हो so be it. तो भी कोई बात नहीं. Just praying for 3 people in your family. अपने परिवार में 3 लोगों के लिए Your प्रार्थना करें. spouse, your child. आपका पति और पत्नी या Or बच्चा just praying for your siblings. या अपने भाई बहनों के लिए. It might be a small number. हो सकता है छोटी संख्या Or हो, few people in the church that you know of. या कलीसिया में कुछ लोग जिन्हें आप जानते हो, In the family of God. परमेश्वर के परिवार के लोग. You may be knowing their name. शायद आप उनका नाम जानते You हैं, may not know the name. नहीं भी जानते तो भी कोई बात But नहीं. 2 or 3 will become 10. 2 से 3 बहुत जल्द 10 हो जाएंगे. 10 will become 15. 10 से 50 हो 15 जाएंगे. to 20. 20 से 50. And you will see the joy of praying for one another, और friends. आप पाएंगे उस आनंद को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने से. But we must make it a practice. लेकिन ये हमारे लिए एक अभ्यास बन जाए. We must, make it a habit. इसे एक आदत बना लीजिए. It is so important to understand that Scripture teaches us to pray for one another. ये जरूरी है कि हम समझे वचन हमें सिखाता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना. Now God unleashes His power परमेश्वर अपनी सामर्थ उड़ेलते हैं through the prayers that we pray for one another. हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा जो हम एक दूसरे के लिए करते And हैं. as God's power just ministers to people, और जैसे परमेश्वर की ये सामर्थ लोगों की सेवकाई करता है, we find the prayer shapes relationship
in our church family. हम देखते हैं हमारे कलीसिया के परिवार में रिश्ते आकार पाते हैं. Some miracles are going to happen कुछ चमत्कार होंगे as we pray for one another. जैसे हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना Do करेंगे. you believe that, क्या friends? विश्वास करते हैं? I believe with all my heart. मैं पूरे दिल से मानता As we हूँ. pray for one another, जैसे हम एक दूसरे के लिए you're प्रार्थना going to see करेंगे, miracles happen. चमत्कार होंगे. You're going to say somebody coming and telling you somebody prayed for me. कोई आके आपसे कहेगा किसी ने मेरे I've लिए seen प्रार्थना the किया. power of prayer. मैंने प्रार्थना का सामर्थ्य देखा है. You know, there is a song that we sing. एक भजन है जो हम गाते हैं. It simply says, if you tried everything and everything has failed, try Jesus. यदि आपने सब कुछ आजमाया हो और सब में हार गए, यीशु को आजमा If के you देखिए. tried everything and everything has failed, try Jesus. यदि आपने सब कुछ आजमाया हो और सब में हार गए My हैं, friends, यीशु को those who are आजमाइए. watching online, मेरे दोस्त जो ऑनलाइन देख रहे हैं, we don't have you in the physical sense. आप यहाँ शारीरिक रूप से नहीं है, But this morning, that's the truth. लेकिन ये सच्चाई है. आज सुबह You may have tried many things. शायद आपने बहुत कुछ आजमाया हो. Perhaps those who are seated here, you tried. जो यहाँ बैठे हैं आपने भी आजमाया हो. I tried to speak to my spouse. मैंने कोशिश की अपने पति या पत्नी से बात But करने don't की, give up praying for your spouse. लेकिन प्रार्थना करना ना छोड़े. I tried speaking to my children. मैंने कोशिश की अपने बच्चों से बात करने की. Children saying, I tried speaking to my parents. बच्चे कहते हैं मैंने कोशिश की अपने But don't माता पिता से बात करने quit praying, friends. लेकिन प्रार्थना करना ना छोड़े. There's power in prayer. प्रार्थना में सामर्थ्य है. If you tried everything, but everything has failed, try Jesus. यदि आपने सब कुछ आजमाया हो और सब में हार गए, Then listen- यीशु को आजमाइए. He says he'll be your closest friend. वो आपका सबसे निकटी दोस्त बनेगा. Go with you to the end. अंत तक आपके साथ चलेगा. If you tried everything and everything has failed, try Jesus. यदि आपने सब आजमाया हो और सब में हार गए, यीशु को Friends, आजमाइए. listen to me. तो सुनिए मेरी बात. I am not saying this. मैं ये नहीं कहता Make Jesus the last resort. कि यीशु आपका अंतिम उपाय हो. In fact, we must turn to Jesus first, always. सच तो ये है कि सबसे पहले हमें यीशु के पास मुड़ना चाहिए. What I'm saying is that you may have tried it many times praying. मैं ये कह रहा हूँ कि शायद आपने बहुत बार कोशिश की प्रार्थना करने की. Don't quit praying. आप प्रार्थना करना ना छोड़े. Pray. प्रार्थना करते रहे. Jesus is still seated on the throne. यीशु आज भी सिंहासन पे विराजमान Jesus है. is still in the business of touching lives. अभी भी लोगों को स्पर्श कर रहे हैं And he moves by his power. अपने सामर्थ द्वारा. This morning, whatever the reasons, your relationship is not where it's supposed to be. जो भी वजह है कि आपके रिश्ते वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए. In the family, परिवार में, in the church, कलीसिया में, in the offices. दफ्तरों में, I believe we need to pray more. मैं मानता हूँ कि हमें और प्रार्थना करने की जरूरत है. We have not prayed enough. हमने जो प्रार्थना की है वो Pray काफी more नहीं. for your immediate family members, spouse, children, parents, and siblings. अपने जीवन साथी, भाई बहन, बच्चों के लिए और प्रार्थना कीजिए. Make it a habit to pray for them. आदत बना लीजिए उनके लिए प्रार्थना Pray करना. more for one another in the church family, our brothers and sisters in the family of God. कलीसिया के परिवार में भाई बहनों के लिए प्रार्थना कीजिए. Pray for pastors and the family and people who God has placed in your lives. पासवानों, उनके परिवार और जिन लोगों को परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है उनके लिए प्रार्थना कीजिए. Somebody has said, किसी ने कहा, Lord, don't let us be like porridge, प्रभु मैं दलिया की तरह ना बनूं, slow to get ready धीरे धीरे तैयार होता है and hard to stir. और हिलाने में भी मुश्किल होता है. Instead, लेकिन बजाय make us like cornflakes, हम कॉर्नफ्लेक्स की तरह बने, always prepared हमेशा तैयार and ready to serve. और तैयार है सेवा करने के लिए. Friends, your prayers for others matters. दोस्तों, आपका प्रार्थना दूसरों के लिए मायने रखता है. Are you ready and prepared to serve one another क्या आप तैयार है दूसरों की सेवकाई करने के लिए? through your अपनी prayers? प्रार्थना द्वारा I'm inviting us मैं आमंत्रण देता हूँ to pray for one another.